प्रदर्शन करने की रिश्ता तो कोई ना कोई खास है लंबी गए एक शब्द बादलों के खिलाफ नहीं बोले केवल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोले मैं उससे जिले च रहना बादलों की जिले च रहना बादलों नाल लड़ना चेकिंग करो तो मैंने अंदर जान दो दे सकती नहीं आप उसी का बाहर बैठो ये बहुत माड़ी गल है जिथे सिक्योरिटी चेकिंग होती है उत्थे बिठा दिता जाए ये पंजाबियों का सरकार एक मिनिस्टर का सरकार प्रदर्शन करने की ये पहली बार मैंने देखा है कि आप हमें भाई हो तो आपको कह रहे हैं कि आप चाहते हैं हम बाहर बैठने चेकिंग करो आप ये चाहते हैं मंत्री को धरने पे बैठाना चाहिए लेकिन हम मिलने आए हैं हमें टाइम तो देंगे टाइम दे देंगे 2-4-5 मिनट देंगे अरे यार मंत्री है रिस्पांसिबल आदमी है फ्रैक्चर है कुर्सी तो चेयर देना है बाहर वो अगर नीचे जमीन पे बैठ जाता है धरने पे बैठ जाता है ये चाहते हो तो आप ये चाहते हो धरने पे बैठे मंत्री ये आपसे बात कर सकते हैं नहीं कोई तो व्यक्ति होगा जो उनको अटैक कर रहा होगा रिसेप्शन पे ओएसडी होगा नहीं यहां पर नहीं बैठे पूरी सचिवालय में बैठे ये तो रेजिडेंट कोई कैंप ऑफिस नहीं है वो एक आदमी हो सुप्रीडेंट साहब हमने बुलाया अच्छा बुला लो सर आप बैठिए चेयर दो साहब एक सेकंड भाई मैं केजरीवाल साहब को मिलन वास्ते आया बैठो सर बैठो चेयर दे दो चिट्ठी का जवाब नहीं आया मैं चाहता हूं कि जिन्हें सरकार दी बसें वो एयरपोर्ट तक दौड़ लेकिन मैं बार-बार लिख रहा है कि मैंने इजाजत पहले कोई थानू लगदा कि कमी पेशी है साडे ऑफिशियल हैगे ने मैं मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नाल आया है कि ਅਸੀਂ बैठ के मुलाकात कर लेनी है थोड़े ऑफिसर से हमारा इवन मैं सिंधिया साहब को भी एजुकेशन मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी उन्होंने कहा साडे प्रॉब्लम नहीं है ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ और मैनू हैरानगी इस गल दी है ਤੁਸੀਂ पिछले दिन मेरे नाल सी इंडो कनेडियन बसेस है ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਐਨਆਰਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਹੁਣ जो हालात में केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं आम जनता की सरकार मतलब कोई भी मिल सके नहीं वो है घर पे या नहीं है लेकिन उनका ओएसडी उनका कोई व्यक्ति और आ जाए वो साढ़े नाल गल कर ले लेकिन इस तरह पुलिस पर्सोनल बाहर खड़ा दें अगर एक कैबिनेट मंत्री नहीं मिल सकता तो आम जनता केजरीवाल साहब को दिल्ली की कितना मिल सकती होगी उत्थे साडे घरां दे विच कोई सिक्योरिटी नहीं है
ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਪਠਾਉਣ ਦਾ, ਖਵਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ में ਇੱਥੇ ਆਏ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦੇ ਸਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਅਜੀਤਿਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਅੱਜ ਅਜੀਤਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ 52 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3000 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਮਾਰੀ 35 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 35 ਗੁਣਾ 2.5 ਕਰਦੇ ਤਾਂ 87.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕੁਰਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਫਟ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਪ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ट्रांसपोर्ट महकमा दिल्ली सरकार का है, दिल्ली का है, केजरीवाल साहब आके साबित कर दें भी सेंटर का मेरा इधर कोई लेन देन नहीं। आज सेंटर गवर्नमेंट ने लिखा भाई, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया सेंटर मिनिस्टर ने लिखा कि दिल्ली सरकार गल कर लो कि दिल्ली सरकार कहेगी तो थोड़ी बस एयरपोर्ट आ जाएगी। मैं जरा थोड़ा एग्रीमेंट है इन्होंने स्पेशल साडी बस इंपाउंड की 2018 इंपाउंड की उस तो बाद इन्होंने लिखा एयरपोर्ट की अथॉरिटी को लिखा कि इन्होंने बस जैसे 1200 रुपए में अगर एक सवारी जाएगी एयरपोर्ट की दिल्ली से, उसी को डबल सरकार में लेकर जा रहे हैं। और पहली बार हमारे मंत्री साहब ने निकाली हमारी जो बस है जहाँ तक पानी मोल पार कर दी ऐसी सरकार है। मेरी भरावां नूं कहना चाहुंदा ਉਹ ਬਥੇਰਾ केजरीवाल साहब 3000 रुपया बादल की बस की टिकट का लगती है। अगर दिल्ली सरकार, अगर पंजाब सरकार की बस दिल्ली एयरपोर्ट तक दौड़न की इजाजत केजरीवाल साहब देंगे तो मैं 1200 रुपए दिल्ली लेके आऊंगा, यानी कि सीधा सीधा 1800 रुपया पूरी करो। कांग्रेस लगातार हमारी सरकारी केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर हैगा तो ताई तो मैं आया मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नाल लेके आया है। अगर कोई मेरा टैक्स बकाया तो कह मीडिया के सामने आके कह कि ये टैक्स बकाया है, राजा वड़िंग ये टैक्स भरे तो फिर मैं इन्हें बस लौटन दिया क्यों कोई टैक्स बकाया। चलो दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ टैक्स कोई बकाया नहीं है अलग तरीके से ना कर यार अगर आप लोग आओ ना हमारे पास केजरीवाल साहब आ जाए हम तो सारी मिठाइयाँ सारा सामान बना दें। आप देखो हैं और गुलाब जामुन खिलाए सर आप और आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ठीक घर के बाहर तमाम लोग बैठ गए हैं इस मांग को लेकर जो पंजाब गवर्नमेंट की बसें हैं प्रदर्शन करने की यहाँ पर इजाजत नहीं है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए हैं और उनको मार निकाला जा रहा है। पंजाब की जो बसें हैं उनको दिल्ली के एयरपोर्ट पे एंट्री मिले। बड़िंग साहब आप आए हैं एयरपोर्ट की भैया कोई पुलिस के साथ अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है। यहाँ पर प्रदर्शन करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती है और अचानक यहाँ पर सब लोग पहुँचे और यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है कि जो बसें हैं वो बसें एयरपोर्ट में दाखिल नहीं हो रही हैं। आगे पीछे एयरपोर्ट में जाने का अधिकार है मगर यहाँ पर परमिशन नहीं मिली है और परमिशन ना मिलने के कारण यहाँ पर प्रदर्शन करना इजाजत के खिलाफ है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस और पंजाब कांग्रेस के बीच में आप देख सकते हैं कि बातचीत चल रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास है और प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर प्रदर्शन नहीं हो सकता। लिहाजा सुरक्षा के जो कारण है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो प्रशासन है वो कार्यकर्ताओं पर करके यहाँ से थोड़ा दूर हटकर प्रदर्शन करें और खुद राजा वड़िंग भी जो यहाँ का जो माहौल अभी खराब हो गया था और जो कार्यकर्ता है वो पुलिस और कार्यकर्ताओं की बात चल रही है और देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रदर्शन के बाद क्या जो मांगे लेकर राजा वड़िंग अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं मांग पूरी होती है वाली बात यही उम्मीद है।
लेकिन हम ये बिल्कुल यार आपको भी कहूँगा हमारी पुलिस से कुछ मिला नहीं। इन्होंने सिक्योरिटी का काम किया है, हमने अपना लोकतंत्र तरीके से अपना पुलिस बिल्कुल हम भी जनता तक आवाज पहुँचाएंगे, वो हमारी पहुँच है आगे काम बिल्कुल हमारा कोई काम नहीं है कि हम बच्चे दिखाएंगे हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है देश की जनता को जो किसी को दिखाना है बिल्कुल एक बार आओ। आप आ जाओ बाहर आ जाओ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है आपसे आ जाओ प्लीज मैं बाहर ये बंदी है सर यहाँ से दो साहब कुर्सी बाहर लगा प्लीज एक मिनट चेयर को नहीं आप हमारी कोई इज्जत दे करना चाहते हो करो भाई साहब पुलिस के बदतमीजी नहीं करनी पुलिस को करने नहीं मैं कुर्सी पे बैठा था कमाल हो गई कुर्सी है कुर्सी पे आराम से यहाँ दे देते हैं कुर्सी दे देना भाई एक बार दे दो कुर्सी दे दो अभी देते हैं सर कुर्सी नहीं यहाँ नहीं बैठेंगे यहाँ नहीं बैठेंगे भाई कोई भी व्यक्ति अगर मैंने देख लिया पुलिस के साथ आपको इधर उधर करते तो फिर आप चले हमारा कोई दिक्कत नहीं है पुलिस हमने कानून अपने हाथ में नहीं लेना हमारा काम है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना। मैंने कुर्सी पर आराम से आपको कह दिया कि वो साइड पे कर देता हूँ मैं अकेला बैठा वो साइड पे गए उन्होंने अंदर जाने से रोक दिया ये तो फिर वही बात हुई ना ये पंजाब सरकार दे मंत्री दा हाल है दिल्ली विच पंजाबियो ये पंजाब सरकार दे मंत्री नूं पुंजे बिठा के राजी आ मंत्री साहब कुछ गलत नहीं कर रहे अपने पंजाब का हक मंगण आए आ पंजाब की इज्जत केजरीवाल साहब वालों कोई ट्रैफिक के रास्ते में रोड साइड में बैठे पंजाबियों की इज्जत इत्थे दिल्ली वाले ने जो पंजाब वाले इज्जत दी और वो भी राजे वड़िंग नूं जिहड़ा लड़ रहा जी मैं भाई आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं मंत्री हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेरा कागज कहाँ है एक मिनट साहब कुर्सी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर ये बैठने अगर आपने कुर्सी हमारी कुर्सी विजय भाई मेरे से कुर्सी कुर्सी तेरे गाना भाई उसे पहले बेइज्जत करो यार उसे पहले कुर्सी मेरा 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 फ्रैक्चर है मैं तो आपसे एक मिनट बस मैं आज एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थोड़ा खिंच के मैं तो अंदर कुर्सी पे बैठने जा रहा था एक मिनट यार ये बाजू बाजू आ रही है चलिए स्टार्ट मैं अमरिंदर सिंह राजा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मंत्री हूँ सर आवाज साथी वीरेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक हमारे इंचार्जेस सब लोग यूथ कांग्रेस के 15-20 लोग हम यहाँ केजरीवाल साहब को मिल रहे हैं। आज का मुद्दा ये है कि मेरी बतौर ट्रांसपोर्ट मंत्री ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को किस प्रकार से सहूलत दे सकूं और आज मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर ये आपको बताना चाहता हूँ। 2018 में पंजाब सरकार की बसें दिल्ली एयरपोर्ट तक जाती थी।
2018 के बाद आदरणीय केजरीवाल साहब की सरकार ने हमारा एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया, बिना बताए। हमने बस हमारी पाउंड कर ली 13 चिट्ठी, जिनका हमें कोई जवाब नहीं आया। मैं वो चिट्ठियां लेकर आया समय समय से। ये लास्ट चिट्ठी जो हमने लिखी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो 10/10/2021 को। फिर मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिखी कि भाई एयरपोर्ट आने की इजाजत दो, तो उन्होंने कहा कि आप आ सकते हो। उन्होंने लिखा ये आप दिल्ली कुड बी रिज्यूम, पर आपको परमिशन जो है वो दिल्ली सरकार से मिलनी पड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिट्ठी है। मैं आज मिलने के लिए आया हूँ, ट्वीट किए, चिट्ठी लिखी, फेसबुक पे संदेश भेजा, इनके लोगों को, पंजाब वालों को कहा मिलवाओ। तो मैं आराम से मिलने के लिए आया हूँ, आराम से बैठा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे को उन्होंने वहां से कहा कि आप कुर्सी भी नहीं दी जा सकती। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पंजाब में कोई व्यक्ति भी आता है, किसी के घर में भी आता है, आम आदमी पार्टी, आम मुख्यमंत्री वो होता है जिसके घर में कोई भी आए, अगर वो नहीं है तो पानी पिए, चाय पिए, अपनी बात कहे और वापस चले जाए। क्या दिल्ली सरकार के पास एक मंत्री और कोई IAS ऑफिसर नहीं है जो मेरी बात सुन ले? मैं मानता हूं केजरीवाल साहब नहीं है, वो मेरे को कल का समय दे दें, मेरे को परसों का समय दे दें, मेरे को कह दें कि पंजाब मिलेंगे। क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो मेरी टेलीफोन पे बात करवा सके? वो केजरीवाल साहब, मैं अभी जा रहा हूं, मेरे को कोई शौक नहीं है कि यहाँ पर नीचे बैठ के कोई तमाशा करना चाहता हूँ। मैं अपना मुद्दा हल करवाना चाहता हूँ। इसमें क्या है, दिक्कत क्या है? NRI जो भाई आते हैं बाहर से, उनसे 3,000 रुपया लिया जाता है, लेकिन बादल की बसें हैं, केवल बादल की बसें ही एयरपोर्ट तक आ सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अंदर की क्या बात है ये बताना चाहिए। 35 बसें बादल की एयरपोर्ट आती हैं, जिसका किराया 3,000 है, 52 सीट है उसके बीच। 1.5 लाख रुपया आने का, 1.5 लाख जाने का। एक बस 3 लाख रुपया दिन का कमा रही है, जबकि मैं 1200 रुपए में NRI भाइयों को दिल्ली से पंजाब और पंजाब से दिल्ली लेकर आ सकता हूं, अगर पंजाब सरकार की बस चले। मेरी बस नहीं, कांग्रेस की बस नहीं, सरकार की बस चलाना चाहता हूं। और इस तरीके का व्यवहार ये अच्छा केजरीवाल मुर्दाबाद। संबॉलिक ਆਪਾਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਔਰ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। अब मेरे नाल 50 कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी, सिक्योरिटी दे है, सब प्लीज 3-4 लोग। और माइक नीचे करवा लो यार प्लीज। मैं डिसिप्लिन ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਖੋਖੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ तमाम ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ मेरे घर आओ, थोड़ी असी खातरदारी करांगे, मेहमान निवाजी करांगे। जो पंजाब दे लोगों को पंजाब दे विरसे सिखाया है, साड़ियां मावां ने सिखाया है। मां मेरी की कहती है, मां कहती है कि अगर दुश्मन करे आ जाए, दुश्मन ते ओनू खाली हथ नहीं मोड़ना और सत्कार करना। इत्थे पंजाब सरकार का मंत्री पंजाब दे लोगों के मुद्दों को लेकर यहाँ पर आया, तो उसका हिस्सा तो ये व्यवहार। ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर मेरा व्यक्ति एक भी बदतमीजी करेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर सिक्योरिटी को खतरा होगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे को पकड़ के सलाखों के पीछे डालना, अगर कोई मेरा व्यक्ति गलती है, जब कानून अपने हाथ में लेगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे ऊपर FIR करके तिहाड़ जेल में छोड़ देना। लेकिन अगर हम अपने मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जनता के मुख्यमंत्री को, आम आदमी जो मुख्यमंत्री है उसको मिलने आए, तो आपत्ति क्या है? तो सर अभी अंदर से कोई सूचना आई है कि एक ऑपरेटर आया है, वो कहता है कागज पकड़ा दो तो चले जाओ। सेक्शन अफसर भेज दे आप। मैंने कहा कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी भेजो, मैंने कहा है कोई मंत्री भेजो। 12-15 मंत्री हैं आपके पास दिल्ली में, यहाँ पर 5 मिनट लगते हैं। ये राजा वड़िंग जी नहीं आए, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए और उन्होंने सैक्शन अफसर भेजा जाता। ये पंजाब का सत्कार आ दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर दे पंजाब तो लोग आए हो कि सानू इस गल दे विच अंदर भी नहीं मंत्री साहब नूं जाण दे सकदे। खोखे दे विच बिठा के कोई गल नहीं, असीं खोखियां च बैठना जानते हैं, असीं जमीनां ते भी बैठा जानते हैं,
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੇ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ, ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੰਗਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਹੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਆਏ, ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਣ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਪੁੰਜੇ ਬਿਠਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ, ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। लेकिन आ तरीका गलत है, बहुत दुखदायक है। सर आपका नाम क्या है? मैं जी अपना कहते हैं पंजाब प्रदेश का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मैं मंत्री जी के साथ इसी करके आया, तो हमारे को पता था इनके साथ धक्का करेंगे। हमने इनको बोला भी सर, ये मंत्री जी नहीं माने, कहते नहीं यार मैं व्यवहार के तरीके से जाऊंगा। हमने बोला भी सर वो इज्जत वो अपनी नहीं गल कर सकते। ये सारे नौजवान साथी हैं, कोई अध्यक्ष है, सब जिम्मेवार अहदों पे। साथ में अभिषेक जी हैं, दिल्ली से एक हमारे साथी है, और मंत्री जी के साथ आए, अकेले आए। बड़ी दुखदायक बात है जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार किया। ये पंजाब के लोग खुले दिल वाले लोग हैं, घर पे आते हैं, कोई अनजान आदमी भी आए उसको चाय पिलाएंगे, कुछ खाना पूछेंगे। यहाँ चाय तो दूर की दूर, यहाँ जमीन पे बिठा दिया। ये है पंजाब के लोगों का सत्कार। दिल्ली के घर के मुख्यमंत्री के घर पे हमारे मुख्यमंत्री घर खोल के रखे हैं, बाहर लोग आते हैं, उनको रात को 1 बजे तक खाना खिलाते हैं। यहाँ पंजाब सरकार के नौजवान, पंजाब सरकार के मंत्री, पंजाब सरकार के मंत्री आए हैं, पंजाब के नौजवान आए, चाय पानी तो दूर की बात, कोई हमारे को उम्मीद नहीं थी इनसे। यार कोई भी व्यक्ति आ जाए उसके लिए मुख्यमंत्री का घर खुला होना चाहिए। कोई आम व्यक्ति आ जाए, मेरे को बताओ मुख्यमंत्री क्या होता है? प्रदेश का मालिक, सबसे बड़ा पद पर बैठने वाला व्यक्ति। मान लो ये तो हम आए, का घर खुला होना चाहिए, आदमी अंदर जाए, पानी पिए, चाय पिए। आज मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री को बहुत से काम हो सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं मिलते, लेकिन सरकार, प्यार, जनता क्या चाहती है? पंजाब में तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा केजरीवाल साहब। पंजाब की जनता तो फिर बाहर निकाल लेती है, फिर चाहे वो CM हो, चाहे वो PM हो। आपने देखा ही है किसानों ने क्या किया है। पंजाब के लोग लड़ना जानते हैं। ये वो लोग हैं जो साइचिन पर एक बंदे ने 20-20 को मारकर दम लिया है। हम आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हम कहते हैं कि हम प्यार चाहते हैं, आप हमें प्यार दीजिए, हमारी बात सुने। ये तो कहीं का व्यवहार ही नहीं है। 1 मिनट में खबर जानी चाहिए, बहुत बड़ी नालायकी है। CM रेजिडेंट से 1 मिनट में खबर जानी चाहिए केजरीवाल साहब को। कोई तो व्यक्ति साथ होगा कि भाई कोई मंत्री आए हुए हैं, तो उनका मैसेज आना चाहिए कि भाई अंदर बैठाओ, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। मेरे घर में आंदोलनकारी आते हैं, रोजाना धरना लगता है। मेरी घरवाली बाहर आती है, मेरी घरवाली अगर नहीं है तो मेरे बच्चे उनके लिए ठंडा लेकर आएंगे, चाय पिलाएंगे, वो मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, हम उनका बात सुनेंगे, तो फिर हम वो आराम से ठंडे होंगे, फिर हम उनकी बातचीत सुनते हैं, फिर वो चले जाते हैं। कोई आगे का नहीं, हमें तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए,
हमें कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए, मैं चाहता हूँ केजरीवाल साहब सीएम साहब से फोन पे बात करवा दें, जब वो कहेंगे तब आ जाएंगे। हमारा कोई एक तमाशा थोड़ी करना है। केजरीवाल साहब से फोन पे बात करा दें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कोई मंत्री है, वो उनसे बात कर लें। अगर उनको लगता है कि उनके स्टेटस में कोई फर्क पड़ेगा किसी कैबिनेट मंत्री से बात करने में, तो वो किसी अपने अधिकारी की जिम्मेदारी लगा दें, वो हमें समय दे दें, हम दोबारा आ जाएंगे। हम तो क्या चाहते हैं, हम तो समय मांगते हैं। हमको ये थोड़ी चाहते हैं कि हमने अंदर घुसना है, हमारा कोई मकसद ही नहीं। आप बताओ। थैंक यू। फ्रैक्चर होने के बावजूद चोट लगी है, देखिए तब भी उनको कुर्सी नहीं दी जा रही है। इससे बड़ा क्या व्यवहार हो सकता है? और आपको मैं ये पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के 35-50,000 रुपया उड़ा दो एक पास चो ना करके आज एयरपोर्ट से उतरे थे। मैं केजरीवाल साहब की मीडिया बाइट देख रहा सी, कहते सी आदमी मजीठिया जी खुद कहा, मैंने ट्वीट किया है, जरा पढ़ लीजिए। ये वही केजरीवाल साहब है जो कहते सी मैं मजीठिया फड़ के अंदर दूंगा। ये रिश्ता तो है ही है, लिखा है रिश्ता तो कोई ना कोई खास है। लंबी गए एक शब्द बादलों के खिलाफ नहीं बोले, केवल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोले। मैं उससे जिले च रहना, बादलों की जिले च रहना, बादलों नाल लड़ना है। सुखबीर बादल कहते हैं उन्होंने भी ऑर्बिट बस टैक्स भर दिया, जो कि रोडवेज जे टैक्स भर के दिल्ली आ सकती है, ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨਸ਼ਈਆ ਸਾਹਿਬ, टैक्स भरती होगी, बिल्कुल भरती होगी जो बस भर, लेकिन टैक्स चोरी कर रही है। वो 700 रुपया पर सीट का 1 साल का दे रही है, जबकि उन्होंने स्टेज कैरेज का टैक्स बनता है। वो गलत चल रही है बस, वो कंट्रैक्ट कैरेज से चल रही है, चलनी वो स्टेज कैरेज से चाहिए। रास्ते चो सवारियां चढ़ा रही है, जी कि उलंघना है नियमां दी, जी कि उलंघना है परमिट दी। परमिट रद्द होने चाहिए। मैं उन्होंने नोटिस दे दिता है, PB01 जिन्नियां गड्डियां उन्होंने नोटिस दे दिते गए ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1,72,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ 35 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? 35 ਬੱਸਾਂ ਜੀ, 35 ਬੱਸਾਂ ਇੰਟੂ 3 ਕਰ ਲਓ, 1.5 ਲੱਖ ਜਾਣ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। 52 ਸੀਟਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਲਦੀ। 52 ਸੀਟਾਂ ਗੁਣਾ ਇੰਟੂ 3000, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਣ ਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਸ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਸ। 50,000 ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇਲ ਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਿਨ ਦਾ। 35 ਤੋਂ 2.5 87 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। भाई रास्ता रुस्ता ना रुकवायो, बस को भी थोड़ा साइड पे कर लो। SHO साहब, SHO साहब कहाँ है? अजय भाई, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ SHO साहब जी 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 भाई साहब, बस भी करनी है तो थोड़ा साइड पे कर देते हैं। रास्ता कोई रास्ता भी रोके ना, जो आपकी हदायत है कि हम कोई कानून व्यवस्था को खराब नहीं कर रहे, जी जी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक ही साहब क्या हाल है ऐसा है, इसलिए मैं आप लोगों की गुजारिश करूँगा, आप लोग समझें ये वो जगह नहीं है जहाँ पर प्रोटेस्ट होता है। सीएम हाउस के लिए डेजिग्नेटेड जगह है, आपको चाहिए हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको सर प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे। नहीं सुनो, आप बैठे हैं, यही प्रोटेस्ट, आप सुनो। Let us be very clear. This site is not meant for any dharna, pradarsan, sit out. Delhi have designated places to protest, and the designated place we will just tell you. आप
you are not here to protest. Let me clarify. नहीं, आप तो any type of dharna, any type of it is protest. is It is protest. भाई बना आप आओ ना। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ। भी सुन लो भाई। प्लीज एक बार उठा लो ये। अब ऐसा है कि पहले आप हमारी बात सुनो. This is not designated place for any sit out. जो जगह है आप वहाँ पे अपने आपको डेजिग्नेटेड प्लेस बनाते हैं. आप अपना पूरा प्रोटेस्ट करो. आप अपना पूरा डेमोक्रेसी में आपको पूरा वो है इख्तियार. सत्येंद्र लेकिन भाई, सत्येंद्र भाई, अब मेरी भी सुनिए। मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ. हजारों प्रोटेस्ट किए मैंने दिल्ली और के खिलाफ. लेकिन मेरी आपसे विनती है, बिल्कुल जो आप कहते हैं हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन मैं बीइंग ए मिनिस्टर प्रोटेस्ट को बना दिया गया. मैं करने नहीं आया था. मैं तो आराम से मिलने के लिए आया हूँ. यहाँ बैठाया तो कुर्सी छीन ली गई. मैं तो मिलने आया हूँ. कोई प्रोटेस्ट नहीं है. आप जो कहते हैं हम वहां चले जाते हैं. जाओ, 1 मिनट 2 आदमी रुक जाओ. बाकी चलो, बाकी आ जाओ. बाकी खड़े चलो भाई. पहले भी यही हुआ. हम तो लड़ते रहे. हमारे तो लड़ भी खाए, जूते भी खाए. आपको पता है सीएम साहब यहाँ नहीं है. आपको पता है कोई तो भेज दो सर, सरकार तो आदमी सुन लेगा ना. सरकार में कोई तो होगा. ठीक है, वहां कर. चलो भाई आ जाओ सारे इधर से. अजय जी, आ जाओ सारे. आप पहले मंत्री जी को अंदर भेजो, हम साथ के साथ खड़े हो कोई बात. अजय जी मेरी बात सुनो यार. थोड़ा सा चलो वहां तो हमारे बंदे वहां चलते हैं. आइए, हम 3-4 लोग आ जाओ भाई धीरे धीरे. और भाई साहब प्लीज यार भैया मेरी नौजवानों से गुजारिश है. मेरी नौजवानों